Okay, so hey everyone, I hope you are all doing fine. Welcome to another video. So we were discussing about information security. What do you mean by it? Like I have taken, I think I've taken three lectures, Unit 1, Unit 2, and Unit 3. Today we're gonna start Unit 4, and I think it's the second last lecture of this subject. And about the last lecture that we have discussed, we have discussed about the security policies and system design, where we have discussed like confidential policies, integrity policies, and hybrid policies too. Also, non-interference and policy composition and international standards that is used in making the security policies. Let me quickly check if the recording is going on. Yes. Okay. So we have also discussed about the system design, like what are the design principles, representation, identity, and control, access, information flow, confinement problem assurance, building systems and assurance, formal methods, and evaluating systems. We have discussed all these topics in the yesterday's class. If there is someone who didn't attended any of this lecture of this unit 1, 2, 3, you can just review the playlist. Also, if you want, like in the last lecture, what we have done, apart from English, we have also translated this whole unit in Hindi for better understanding. Also, comment down if that idea is good for you or it works for you or not. In this lecture, we're going to start logic-based system. It's quite a simple thing, logic-based system, and it's important too because in this chapter we're going to study about operating system security and also what are malicious logic, which is quite interesting topic according to my personally, according to me. So let's get started without wasting the time. So the first thing that we're gonna discuss is logic-based system. What are logic-based system? What do you mean by it? Logic-based system is, according to me, when I first heard about logic-based system, it sounds to me like there must be a system which comprises of some logic. I think so, but actually, it's apart from the logically when you talk about logically, it's not correct. Logic based system is dedicated like when you have a system and you need to design some like proprietary logic for it that will not only solve the problem that comes to in the subject of security, but also you need to improve the efficiency and effectiveness of your model. So we'll discuss few types of it. First is malicious logic. So malicious logic क्या है? Basically, malicious logic is refers to an program or code intentionally designed to harm, disrupt, and gain unauthorized access to the system. As clear as that, guys. It includes malware such as virus, worms, Trojan horses, or ransomware, spyware, etc. मतलब क्या है malicious कोड? वो पीस ऑफ कोड है या वो प्रोग्राम है जो हम डिजाइन करते हैं इंटेंशनली intentionally डिजाइन करते हैं to harm, disrupt or gain unauthorized access to our system. Done. टाइप्स कितने तरह के malicious logic होते हैं? सो वायरस होते हैं. वायरस क्या होते हैं? वायरस आर द legitimate programs that spread when the program is executed. मतलब बेसिकली वायरस वो समझो एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स, वायरस वॉर्म्स, ये सब क्या है? ये सेट ऑफ कोड है. ये एक्चुअल में वायरस मतलब ऐसा कुछ नहीं कि वो कुछ ऐसा कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म टाइप में कुछ होगा जो कंप्यूटर के अंदर घुसता है. पहले मेरे को ऐसा लगता था कि साउंड्स लाइक कि वायरस वॉर्म्स ये सारी चीजें ऐसी चीजें होंगी जो कंप्यूटर में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म टाइप में जो कंप्यूटर को हैक करती होंगी, पर ऐसा कुछ नहीं है. Actually, viruses, worms, Trojan horses, ransomware, spyware, these are all piece of code. These are not something anything like that जो मैंने भी डिस्कस किया. ये सारे के सारे पीस ऑफ कोड है, बस इनके रोल्स थोड़े थोड़े अलग होते हैं. वायरस बेसिकली अटैच करता है किसी किसी भी प्रोग्राम के साथ. वो अटैच हो सकता है लेजिटिमेट प्रोग्राम के साथ जो लेजिट प्रोग्राम्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल विंडोज मीडिया प्लेयर जिसमें साउंड्स या गाने वाले और बजते हैं, या फोटो वीवर जिसमें हम फोटोज देखते हैं. तो वो किसी के साथ अटैच हो जाता है और अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है. यानी कि पहले एक वायरस एंटर किया आपके सिस्टम पे, तो वो अपने अपने थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ कॉपीज बना सकता है विद इन फ्यू आवर्स या
बहुत कम समय में, ऐसा मतलब। तो माइक्रो वायरसेस होते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह में। काफ़ी अब देखा होगा कि आपके फोटोज वीडियोस बहुत टाइम ऐसा होता है करप्ट कर जाते हैं, वो वायरस के चलते होते हैं। वायरस के चलते करप्ट हो जाते हैं सारे फोटोज वीडियोस। देन सेकंड malicious कोड लॉजिक इज लाइक worms. Worms आर स्टैंड अलोन प्रोग्राम, दिस इज इंपॉर्टेंट। स्टैंड अलोन प्रोग्राम क्या होता है? जैसे वायरस को आप किसी के साथ अटैच होना जरूरी है, किसी लेजिट सॉफ्टवेयर के साथ अटैच होना जरूरी है आपके सिस्टम में। पर वॉर्म्स स्टैंड अलोन होते हैं, उसको किसी के साथ अटैच होने की जरूरत नहीं। वो रेप्लिकेट करते हैं खुद को, स्प्रेड अक्रॉस नेटवर्क्स विदाउट यूजर इंटरैक्शन। लाइक WannaCry वॉर्म, एक वॉर्म का एग्जांपल है WannaCry। ये इसने काफी धूम मचाई थी जब ये मार्केट में था, मतलब बहुत कंप्यूटर को इसने खराब किया है वॉर्म्स को। तो वॉर्म्स क्या करते हैं, जैसे अपने सर्फिंग करते हो या नेट इंटरनेट चलाते हो या कुछ भी चलाते हो, कल चलो कल को इंस्टाग्राम चला रहे हो, कुछ भी ऐसे लिंक आई या कुछ भी आपने से कुछ पोस्ट में क्लिक कर दिया। अब क्या होता है कि आप बिना आपके इंटरैक्शन के, बिना कुछ डाउनलोड किए, वो वर्म आपके सिस्टम में आ गया। अगर आपके सिस्टम में प्रॉपर एंटीवायरस नहीं है या कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है जो वायरस वर्म्स को प्रिडिक्ट कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है, देन वो क्या करेगा, खुद को रेप्लिकेट करेगा वर्म, और आपके कंप्यूटर को मतलब बेसिकली खराब कर देगा। खराब नहीं बोल सकते, स्लो स्लो डाउन करते हैं वर्म्स जनरली। वायरसेस मेनली स्लो डाउन करते हैं, वायरसेस स्लो डाउन करते हैं। वर्म्स बेसिकली आई थिंक बेसिकली नेटवर्क के थ्रू अपने आप को रेप्लिकेट करने में आपने देखा होगा कभी कभी आपके स्पेसेस बहुत भर जाते हैं। लाइक कभी कभी स्पेसेस इतने हो जाते हैं, आपने कुछ लोड भी नहीं किया फिर भी आपके स्पेसेस भर गए। दैट इज अ लाइक अ सिम्टम ऑफ वॉर्म, कि आप वॉर्म से सफर कर रहे हो, आपका सिस्टम वॉर्म्स से सफर कर रहा है, स्पेस भर जाना, ये सारी चीजें। नेक्स्ट इज ट्रोजन हॉर्स या ट्रोजन, इसे हम बोल रहे हैं। ट्रोजन एक लेजिटिमेट प्रोग्राम के साथ मिलिशियस एक्शन, एक फेक एंटीवायरस प्रोग्राम स्टीलिंग डेटा। एग्जाम्पल बताता हूँ, ट्रोजन नाम आया कहाँ से, एक बहुत क्विक स्टोरी बताता हूँ। तो क्या हुआ, एक बार की बात है, एक राजा था। उस राजा ने अपने आसपास एक बाउंड्री बना ली, और उसके पड़ोसी देश ने, जिसने उस पर अटैक किया था, उसकी सेना यहाँ खड़ी थी। तो ये सेना इसके बाउंड्री को पार नहीं कर पाती थी, क्योंकि यहाँ पर इसके इस राजा के सैनिक खड़े थे, तो वो इनको मारते थे। तो इन लोगों ने क्या किया है, रातों रात यहाँ से पूरे खाली कर दिए इन लोगों ने, और एक हॉर्स का पुतला, अब मैं हॉर्स कैसे बनाऊँ इसमें, एक हॉर्स का पुतला यहाँ छोड़ दिया, और इसमें एक शांति का प्रस्ताव रखा कि हम हार मानते हैं, हम चाहते हैं। ये शांति का प्रस्ताव रखा, और ये सब निकल गए रातों रात। तो जब इसके सैनिक, जो इस राजा के सैनिक थे, उन्होंने देखा, राजा को बताया कि इन लोगों ने शांति का प्रस्ताव रखा है, तो इस प्रस्ताव को उन लोगों ने अंदर लिया, इस हॉर्स को, जो लकड़ी का हॉर्स उन्होंने बनाया था, बड़ा सा लकड़ी का हॉर्स था, तो उसको इन लोगों ने इसके अंदर लिया। और फिर इन लोग को लग रहा था कि जंग खत्म हो गई, इन लोग जीत गए, ये लोग सब डर के भाग गए। फिर क्या हुआ, एक रात ऐसा था कि इस हॉर्स से मल्टीपल सैनिक, इसके जो सैनिक भागे नहीं थे, इस हॉर्स के अंदर छिपे हुए थे, लकड़ी के हॉर्स के अंदर, और इससे बाहर निकल के इस पूरे टेरिटरी को कैप्चर कर लिया। दिस वॉज द स्ट्रैटेजी, जिसको हम ट्रोजन हॉर्स स्ट्रैटेजी बोलते हैं। यहाँ से वो नाम आया ट्रोजन हॉर्स का, ट्रोजन हॉर्स का। और यही वो काम है जो करता है। ट्रोजन हॉर्स बेसिकली एज अ लेजिटिमेट प्रोग्राम की तरह काम करता है, बट परफॉर्म्स मिलिशियस एक्शंस, लाइक एक एंटीवायरस, फेक एंटीवायरस प्रोग्राम की तरह होगा। आपको लगेगा जैसे अवास्ट एंटीवायरस कितने लोगों ने यूज किया है, अवास्ट एंटीवायरस, आपको लगेगा ये जेन्युइन एंटीवायरस है यार, मेरा स्कैनिंग भी कर रहा है, मेरे को वायरस डिटेक्ट कर रहा है, डिलीट कर रहा है, पर एक्चुअल में ये खुद ही एक फेक वायरस क्रिएट करता है। ये आपको लगेगा ये एंटीवायरस है, पर ये एक्चुअल में खुद ही आपके सिस्टम को खराब कर रहा है, वायरस प्रोड्यूस कर रहा है। इसे बोलते हैं ट्रोजन, या ट्रोजन हॉर्स भी बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में। तो दिस इज द थिंग। तो नेक्स्ट थिंग इज दैट आई थिंक एग्जाम्पल क्लियर है, और ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इज रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या है, इनक्रिप्ट्स यूजर डेटा एंड डिमांड्स पेमेंट फॉर डिक्रिप्शन। बेसिकली ये क्रिप्टो लॉकर टाइप में, कि यूजर का डेटा को वो इनक्रिप्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल आपके फोटोज है, आपके फोटोज वो इनक्रिप्ट कर देगा, और फिर आपसे पेमेंट की डिमांड करेगा, अगर आप तो खोलना चाहते हो तो कुछ अमाउंट पे करो, ये सारी चीजें करते हैं। इसको बोलते हैं रैंडम रैंसमवेयर। ये बेसिकली किसी हैकर द्वारा या कोई भी इंसान के द्वारा ये किया जा सकता है। स्पाईवेयर क्या होता है, स्पाईवेयर सीक्रेटली मॉनिटर करता है आपके एक्टिविटीज को, कि आप क्या कर रहे हो, स्टील्स सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक की लॉगर्स,
वगैरह चीज़ें। की लॉगर्स मैं बताता हूँ क्या होता है। अगर आपने साइबर सिक्योरिटी पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए की लॉगर क्या होता है। जैसे अगर आप कीबोर्ड में कुछ भी टाइप करते हो ना, तो की लॉगर्स क्या होते हैं, वो सीक्रेटली आपके सिस्टम में इंस्टॉल रहते हैं और आप जो भी टाइप करते हो वो सेव करते चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने पेमेंट की, तो पेमेंट करने के लिए आपने पिन डाला होगा, तो ये पिन भी स्टोर कर लेगा और ये डायरेक्टली जिसने स्पाईवेयर बनाया है उसको ये पूरे लॉग्स चले जाते हैं कि भाई इस बंदे के ये लॉग्स है, तो वो देख सकता है आपकी यूपीआई की पिन भी है इसमें, तो क्या पता वो एक्सेस भी कर ले। दिस इज कॉल्ड स्पाईवेयर और की लॉगर। ये सीक्रेटली मॉनिटर करते हैं आपके एक्टिविटीज को और आपका सेंसिटिव डेटा चुरा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि भाई हर्ष ये सारी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है एज अ मेलिशियस लॉजिक में। अब मुझे ये बता दो हर्ष कि इससे मैं प्रोटेक्ट कैसे कर सकूँ। नहीं, पहले ये बताओ इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। इसका तो ये यार इम्पैक्ट क्या है, डेटा चोरी हो सकता है, सिस्टम क्रैश हो सकता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल सकता है आपको, फाइनेंशियल लॉसेस आप फेस कर सकते हो। एग्जाम्पल, अ ट्रोजन माइट ओपन अ बैकडोर अलाउइंग अटैकर्स टू कंट्रोल द सिस्टम। आपका एक सिस्टम है, बैकडोर मतलब जैसे आपको लग रहा है कि आपने एंटीवायरस बहुत बढ़िया एंटीवायरस इंस्टॉल कर लिया है और क्या पता वो एंटीवायरस आपके फुल्ली प्रोटेक्टेड सिस्टम में एक बैकडोर क्रिएट कर दे जिसमें कि हैकर्स इस बैकडोर के थ्रू आपका पूरा का पूरा सिस्टम ही कंट्रोल कर सके। आपको लग रहा है आप अपना सिस्टम कंट्रोल कर रहे हो पर आपका सारा डेटा उसके पास जा रहा है, सारे फोटो सारे जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो सब हैकर के पास जा रहा है। ये होता है बैकडोर क्रिएट करना, ये ट्रोजन क्रिएट करता है। तो दिस इज द मेजर इम्पैक्ट जो हम देख सकते हैं इस इन सब चीजों से, मिलिशियस लॉजिक से आता है। प्रिवेंशन, आप हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज प्रिवेंट कैसे करो, तो यूज ऑथेंटिक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अगर आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही करना है तो ऑथेंटिक करो, थोड़े कुछ पेड पेड यूज करो, पेड चीजें और ऑथेंटिक चीजें यूज करो। और विंडोज में क्या, विंडोज ऑथेंटिकेटर वगैरह सारी चीजें ऑटोमेटिक रहती है, तो उसको अपडेट करो, विंडोज सिस्टम को अपडेट करना काफी जरूरी है। अवॉइड अनट्रस्टेड डाउनलोड्स, कभी भी ऐसी चीजें जिसमें सस्पिशियस लगे उसको डाउनलोड मत करो। इम्प्लीमेंट हार्ड फायरवॉल्स, फायरवॉल हमेशा इम्प्लीमेंट रखो। ये सारी चीजें इज अ गुड टू प्रिवेंट दिस malicious logic. Second thing is vulnerability analysis. Yes, so vulnerability analysis क्या है, थोड़ा स्पीड अप करते हैं। vulnerability analysis और vulnerability assessment, ये बेसिकली होता है is a process to identifying, evaluating and prioritizing weaknesses in the system that could exploit the attackers. Means आपके हर एक के सिस्टम में कोई वीक स्पॉट होता है, तो उस वीक स्पॉट को पहचानना, आइडेंटिफाई करना मतलब पहचानना, उसको इवेल्युएट करना, क्या जरूरी है उसको इवेल्युएट किया हमने, फिर इसको प्रायोरिटाइज करो, अपने वीकनेस को उसको सॉल्व करो। दिस इज कॉल्ड वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। आइडेंटिफाई करना इज अ वल्नरेबिलिटी एंड इवेल्युएटिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग द वीकनेस इज कॉल्ड वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। तो व्हाट आर द स्टेप्स, मैंने स्टेप्स अभी बताया आपको। डिस्कवर, पहले पहचान दो, आइडेंटिफाई करो, डिस्कवर करो, फिर असेसमेंट करो, यानी कि ये देखो कि किस लेवल का वल्नरेबिलिटी है, क्या ये बहुत खतरनाक वल्नरेबिलिटी है, उसको सीवियर है तो उसको प्रायोरिटाइज करो, अगर बहुत ज्यादा सीवियर या मेजर वल्नरेबिलिटी है तो, और अगर माइनर है तो उसे आप बाद में प्रायोरिटाइज कर सकते हो। और फिर मिटिगेशन, यानी कि उसमें पैचेस, उसमें अपडेट्स करो, कॉन्फ़िगर करो, उसको सही करो और फिर डिप्लॉय करो जितना मन। तो ये सारी चीजें वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में आती है। एग्जाम्पल के तौर पर अपाचे का कोई आउटडेटेड सर्वर है, उसमें कुछ चीजें, कुछ वल्नरेबिलिटीज होंगी तभी तो उसको अपडेट किया गया है ना। जैसे ये एग्जाम्पल एक सर्वर का, तो इसमें कुछ कुछ चीजें होती है जो वल्नरेबिलिटी है तभी तो उसको अपडेट किया गया, तो आप अपडेट करोगे तो ये वल्नरेबिलिटी हट जाएगी आपकी। ये सारी चीजें होती है। इंपॉर्टेंस की वो, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट अटैकर्स, और आपका वीकनेस को प्रोटेक्ट कर सकते हो। फिर अटैक सरफेस, रिड्यूस द अटैक ऑन द सरफेस सिस्टम, यही सब चीजें। थर्ड थिंग इज ऑडिटिंग। ऑडिटिंग इज अ कॉन्टेक्स्ट, ऑडिटिंग भी देखो, ऑडिटिंग एक उसमें भी होता है, फाइनेंस में भी होता है, हमें पढ़ना भी है नेक्स्ट सेमेस्टर, ये नेक्स्ट सब्जेक्ट में फाइनेंस अकाउंटिंग में। सो ऑडिटिंग इज ए कंटेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी। हम सिक्योरिटी कंटेक्स्ट में क्या बोलते हैं, इज सिस्टमेटिकली रिव्यूइंग एंड मॉनिटरिंग अ सिस्टम्स एक्टिविटी। मतलब सिस्टमेटिकली रिव्यू करना और मॉनिटर करना सिस्टम के एक्टिविटीज को, टू इंश्योर कंप्लायंस एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज को इंश्योर करना, डिटेक्ट करना अनऑथराइज एक्सेस को, बेसिकली मॉनिटर का काम करना। यहीं पर तो कीवर्ड है मॉनिटर। अब तीन तरह की मॉनिटरिंग होती है, ऑडिटिंग होती है। सिस्टम ऑडिटिंग, नेटवर्क ऑडिटिंग, कंप्लायंस ऑडिटिंग। सिस्टम ऑडिटिंग क्या होता है, चेक करना अनयूजुअल एक्टिविटी को, लाइक मल्टीपल फील्ड लॉगिन्स अटेम्प्ट, अगर मल्टीपल फील्ड लॉगिन अटेम्प्ट हो रहे हैं उसको चेक करना, वो सिस्टम ऑडिटिंग आती है। नेटवर्क ऑडिटिंग, लाइक यूजिंग टूल्स लाइक वायर शार्क, क्या जैसे आप कोई वाईफाई से कनेक्ट करते हो और वो पब्लिक वाईफाई है, कोई किसी कैफे में गए वाईफाई से कनेक्ट कर लिया, तो क्या होता है ना, पैकेट्स
वाईफाई में पैकेट्स आते हैं नेटवर्क लेयर पे, पता होगा सीसी, अगर आपने नेटवर्किंग पढ़ी होगी तो पैकेट्स, या मान लो वाईफाई, चलो पैकेट्स मत मानो, कोई भी डेटा वाईफाई से कोई भी डेटा आपके सिस्टम पे, आपके फोन पे या लैपटॉप पे ऑटोमेटिक आ सकता है अगर आपने वाईफाई कनेक्ट कर लिया तो। वो नेटवर्क ऑडिटिंग में आता है। नेटवर्क ऑडिटिंग, तो हमें नेटवर्क ऑडिटिंग स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, जो हमें चेक करता रहे कहीं वाईफाई से या किसी नेटवर्क से मेरे पास कोई ऐसी चीज ना आ जाए, उसको मॉनिटर करता रहे, कोई एनोमलीज ना आ जाए। सिस्टम ऑडिटिंग आपके खुद के सिस्टम पे चेक करेगा, नेटवर्क ऑडिटिंग आपके वाईफाई पे या किसी और चीज पे चेक करेगा। कंप्लायंस एडिटिंग आर जस्ट स्टैंडर्ड आईएसओ वगैरह पे जो भी चीजें मेंशन रहती है वो कंप्लायंस एडिटिंग में आती है। प्रोसेस क्या होता है, कलेक्ट लॉग्स, लॉग्स क्रिएट कलेक्ट करना, एनालाइज करो लॉग्स को कि आपने कलेक्ट तो कर लिया, अब उसमें कुछ आपको सस्पिशियस पैटर्न देखने को मिल रहा है क्या, लाइक ऑड आवर्स पे आपके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एक्सेस हो रहे हैं, ऐसा कुछ सस्पिशियस पैटर्न है, और फिर उसको रिपोर्ट करो और करेक्टिव एक्शन लो। लाइक अगर कुछ पता चलता है आपको कि यार ये एक्टिविटीज मेरे में हो रही है, कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज हो रही है, तो आप उसको रिपोर्ट करो। यू कैन आइदर पुट विद द साइबर सेल, और किसी भी तरीके से आपको रिपोर्ट करना है, और या आपको खुद से करेक्टिव एक्शंस लेने हैं। This is the thing. This is it, auditing. Example भी, auditing shows logs to user attempting to access restricted files 50 times in 5 minutes. ऐसा कुछ आया। इसको बोलते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। मतलब अगर हमारे पास एक सिस्टम है उसमें मल्टीपल टाइम्स अटैक कर रहा है, मल्टीपल टाइम, जब तक वो सही ना हो तब तक अटैक कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। तो अगर 5 मिनट में 50 बार, 5 मिनट में 500 बार लॉग इन करने का ट्राई किया गया, तो सिस्टम को 5 मिनट के लिए ब्लॉक कर दो। आपने देखा होगा, कभी आप अपने विंडोज को लॉग इन करके देखो या अपने फोन को लॉग इन करके देखो, आप अगर आप 10 बार अटेम्प्ट करते हो या 5 बार अटेम्प्ट करते हो ना, तो वो 10 मिनट के लिए लॉक हो जाता है पूरा सिस्टम। तो उसके लिए ब्रूट फोर्स अटैक अगर कोई कर रहा है, उससे बचने के लिए ये सारी चीजें यूज की जाती है ऑडिटिंग में। इंपॉर्टेंस क्या, अकाउंटेबिलिटी, सिक्योरिटी ब्रीच को प्रिवेंट करती है, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में बहुत सपोर्ट करती है ये सारी चीजें। नेक्स्ट इज इंट्रूशन डिटेक्शन। कितना बाकी है यार, हमने अभी यहाँ पर इंट्रूशन डिटेक्शन में यहाँ तक हमने कवर कर लिया। ओके, थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा आई थिंक। We have got up to 17 minutes lecture हमने कर लिया। Next is okay, intrusion detection क्या है? IDS, intrusion detection are tools or process that monitor system. Basically सिस्टम को मॉनिटर करता है और अनऑथोराइज एक्टिविटी और पॉलिसी वायलेशंस को मॉनिटर करता है, ये सारी चीजें। इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम 4 तरीके के होते हैं, होस्ट बेस्ड, नेटवर्क बेस्ड, सिग्नेचर बेस्ड और एनोमली बेस्ड। होस्ट बेस्ड क्या करता है, मॉनिटर्स अ सिंगल होस्ट फॉर सस्पिशियस एक्टिविटी। लाइक अगर किसी ने सिस्टम के फाइल्स में चेंजेस किए तो एक सिंगल होस्ट को देखता है। लाइक ट्रिप वायर डिटेक्ट्स अनऑथराइज, ये ट्रिप वायर एक एग्जांपल है। ट्रिप वायर एक सॉफ्टवेयर है जो डिटेक्ट करता है अनऑथराइज्ड फाइल मॉडिफिकेशंस को। ठीक है, ये है होस्ट बेस्ड एग्जांपल। नेटवर्क बेस्ड में क्या है, मॉनिटर्स ट्रैफिक और सस्पिशियस पैटर्न, लाइक पोर्ट स्कैन वगैरह, ये सारी चीज़ें कुछ अगर नेटवर्क लेवल पे चीज़ें होती है साइबर सिक्योरिटी में, पोर्ट स्कैन वगैरह को मॉनिटर करता है। अब इतना समझो बस, होस्ट बेस्ड मॉनिटर करता है सिंगल होस्ट के सस्पिशियस एक्टिविटी को। नेटवर्क बेस्ड एनालाइज करता है कि कहीं कोई नेटवर्क का इशू तो नहीं आ रहा, इंट्रूशन डिटेक्शन। सिग्नेचर बेस्ड देखता है कि डिटेक्ट्स नोन अटैक्स बाय मैचिंग पैटर्न्स। लाइक अगर मान लो एक एक मान लो स्पेसिफिक पैटर्न है अटैक करने का, जैसे इवन नंबर ऑफ आवर्स में अटैक होता है, या अटैक करने का अटैकर क्या करता है, अटैकर आपके पेंट में अटैक करता है, पेंट सॉफ्टवेयर है ना, पेंट में अटैक करता है। तो ये बहुत कॉमन अटैक है, बहुत जगह पाया गया है कि अटैकर पेंट में अटैक करते हैं। तो ये सिग्नेचर बेस्ड होता है, अगर पेंट में कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी डिटेक्ट होती है तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि ये पेंट जो अटैकर अटैक करता है पेंट में, वो वाला अटैकर है। इस तरह से इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम बेसिकली काम करता है। मैं आपको बता रहा हूँ जो बड़ी बड़ी कंपनीज में जो इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम काम करता है ना, किस तरह से काम करता है, क्या सोच के वो काम करते हैं, ये सारी चीजें। नेक्स्ट इज लाइक एनोमली डिटेक्शन, कि अगर कुछ भी एबनॉर्मल बिहेवियर आपको आइडेंटिफाई होता है, अनयूजुअल ट्रैफिक के स्पाइक्स आते हैं, एकदम से लोग इतने थे तो एकदम से बहुत ज्यादा लोग आ गए या बहुत कम लोग आ गए, इस टाइप पे कुछ भी अनयूजुअल एक्टिविटी आता है, वो इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। अब ऑपरेशंस क्या क्या फॉलो करते हैं, डेटा कलेक्ट करना नेटवर्क पैकेट्स में, सिस्टम लॉग में, एनालाइज करता है डेटा, साइंस ऑफ इंट्रूशन, अलर्ट करता है एडमिनिस्ट्रेटर को, इंट्रूशन डिटेक्टेड, इस टाइप की चीजें। एग्जांपल एनआईडीएस, डिटेक्ट अ सडन स्पाइक इन ट्रैफिक इन पोर्ट नंबर 445 इंडिकेटिंग अ पोटेंशियल एसएमबी बेस्ड अटैक। एसएमबी बेस्ड अटैक मतलब होता है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक देना, यानी कि मैंने आपको बताया था डीडॉस अटैक के बारे में या डॉस अटैक के बारे में। इस टाइप का अटैक जिसमें मल्टीपल यूजर्स एक पर्टिकुलर पोर्ट पे अटैक कर रहे हैं, तब जब तक वो पोर्ट एकदम शट डाउन ना हो जाए तब तक उसमें अटैक किया जा रहा है। इस टाइप के अटैक्स बेसिकली प्रिवेंट करता है इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम।
इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस है अर्ली वार्निंग्स, अटैक, क्विक रिस्पॉन्स और मिटिगेट डैमेज, मतलब डैमेज को कम करना, अटैक्स को पहले ही प्रिवेंट करने का ट्राई करना, प्रिकॉशंस रखना अपना। नेक्स्ट इज हम आते हैं इस यूनिट के पार्ट टू में। पार्ट टू हमें सिखाता है एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन में हमें फर्स्ट चीज पढ़ना है नेटवर्क सिक्योरिटी। एप्लीकेशन में नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी में बहुत बेसिक है, हमने सीन में भी पढ़ा है। नेटवर्क सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स प्रोटेक्टिंग द इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी। वही सीआईए प्रिंसिपल याद रखो आप, तीनों चीज को प्रोटेक्ट करना अपने डेटा को अक्रॉस नेटवर्क्स। टेक्निक क्या क्या यूज होते हैं? फायरवॉल इंस्टॉल करो, फायरवॉल से इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक दोनों कंट्रोल में रहता है। तो ब्लॉक द पोर्ट, लाइक एग्जांपल के तौर पर 23 पोर्ट को अगर हम ब्लॉक करेंगे तो हम टेलनेट एक्सेस को बंद कर सकते हैं। टेलनेट एक्सेस क्या होता है? बेसिकली रिमोट कंप्यूटिंग होता है। अगर ये मेरा सिस्टम है, कोई भी आप लोग चाहो तो मेरे सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो। अगर आप टेलनेट प्रोटोकॉल के थ्रू पोर्ट नंबर 23 को एक्सेस करते हो और मैंने यहाँ से अलाउ कर दी अगर, तो आप रिमोटली मेरे सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो। अगर आपने एनी डेस्क का नाम सुना होगा, एनी डेस्क एक सॉफ्टवेयर है, ये टेलनेट या एसएसएच पे काम करता है। इस पे आप कोई भी इस पे जाएगा और अगर वो किसी और का यूनिक आईडी डालता है तो उसके टेलनेट प्रोटोकॉल को एक्टिवेट करता है पोर्ट 23 के थ्रू, वो उसका पीसी यूज कर सकता है यानी कि रिमोटली एक्सेस कर सकता है। फिर नेटवर्क सिक्योरिटी में और क्या टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो? इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन वगैरह आप ऑन रखो, जिसमें डेटा आप जो भी ट्रांसमिट कर रहे हो वो एच टी पी एस में जाए। एच टी पी एस यानी कि मोर सिक्योर वर्जन है। फिर इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम जो हमने अभी यहाँ पढ़ा था, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने नेटवर्क में, जो कि डिटेक्ट करता है, ब्लॉक करता है अटैक्स को। फिर वीपीएन आप यूज कर सकते हो ताकि आपका आईपी एड्रेस किसी के पास एक्सेस ना हो। आईपी एड्रेस से भी क्या होता है कि सिक्योर टनल्स क्रिएट, लाइक आप समझो कि आपका अगर आईपी एड्रेस ही एक्सपोज हो गया तो आपके आईपी एड्रेस के थ्रू भी आपको अटैकर्स अटैक कर सकते हैं। तो इट इज प्रिफरेबल टू यूज वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिससे आप एक सिक्योर टनल की तरह, यानी कि अगर आपको ये चीज एक्सेस करनी है तो आप डायरेक्टली वीपीएन के यूज से ये चीज एक्सेस कर सकते हो और आपका एक्चुअल लोकेशन किसी को पता नहीं चलेगा। या रिमोट एक्सेस कर सकते हो, जो भी कर सकते हो वीपीएन के थ्रू कर सकते हो। ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी हमने कर लिया। एग्जाम्पल में क्या है? एग्जाम्पल में यही है कि एक फायरवॉल अनऑथराइज एक्सेस कंपनी का इंटरनेट नेटवर्क को प्रिवेंट करता है, वीपीएन और भी इसको सिक्योर करता है रिमोट एक्सेस के एम्प्लॉयज को। ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंस भी आप देख सकते हो, बहुत बेसिक है। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि उसको बचाना भी बहुत ज़रूरी है। टेक्निक्स क्या होती है? एक्सेस कंट्रोल कर दो, यानी कि एडमिन के राइट्स डिसाइड कर लो, यूजर के राइट डिसाइड कर लो। तो क्या है, यूजर एडमिन को एक्सेस ना कर सके या कोई भी आज के टाइम पे यूजर आया वो एडमिन एक्सेस ना कर सके। ये सारी चीजें तो एक एक्सेस कंट्रोल रखना चाहिए ना कि कितने कौन कौन सी चीजें कौन कौन लोग एक्सेस कर सकते हैं। यूज ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड बायोमेट्रिक्स या परमिशंस, कुछ भी सी एच एम ओ डी, लाइक ये कमांड है लिनक्स का, इसको यूज करके आप एडमिन एक्सेस ले सकते हो। तो अपने एक्सेस को कंट्रोल करो ऑपरेटिंग सिस्टम में ताकि सबको वो एडमिन एक्सेस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस ना मिले। पैचिंग करते रहो। पैचिंग मीन्स, एक पैचिंग मीन्स, ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी की हम बात कर रहे थे। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, पैचिंग। पैचिंग मतलब अपने ओएस को रेगुलर अपडेट करते रहना ताकि अगर अपडेट कैसे होता है, अगर हमारे सिस्टम में या ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट होती है या कोई भी ऐसी चीजें फाइंड आउट होती है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, इधर इट मे बी सीवियर या मल्टीपल नॉन सीवियर वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई किया गया, तब विंडोज होती है या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो खुद को अपडेट करती है। तो हमें रेगुलरली अपडेट करना चाहिए ताकि हम अपने वल्नरेबिलिटीज को फिक्स कर सकें। सैंड बॉक्सिंग, सैंड बॉक्सिंग क्या होता है कि जैसे अभी आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा एक सिंगल टैब पे चीजें चल रही है। फॉर ऐसा ना हो मैं चाहूंगा, पर अगर मैंने कुछ ऐसा कुछ भी एक्टिविटी कर दी इसमें या कोई भी अनयूजुअल लिंक पे क्लिक कर दिया, तो अगर इस लिंक से कोई वायरस आता है और मेरे इस टैब को इफेक्ट करता है, तो फॉर सपोज मेरा ब्राउजर एक टाइम पे बंद या नॉट रिस्पॉन्ड हो जाएगा या कुछ भी ऐसा हो जाएगा, अफेक्ट करेगा अगर वायरस को। तो अगर मैंने ये टैब बंद कर दिया तो मेरे ब्राउजर में और किसी टैब्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। मैं मीन्स में क्या बोलना चाह रहा हूँ कि सैंड बॉक्सिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने एप्लीकेशंस को एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में डाल देते हैं ताकि हम डैमेज को लिमिट कर सकें। एक चीज तो ये था कि अगर ये मेरा टैब डैमेज होता तो मेरे पूरे के पूरे जितने भी टैब्स खुले थे वो सब डैमेज हो जाते। पर वो हम नहीं चाहते, वो ब्राउजर नहीं चाहता, इसलिए क्या करता है ब्राउजर इसको एक सैंडबॉक्स में रखता है, इसको अलग सैंडबॉक्स में रखता है, हर टैब एक अलग सैंडबॉक्स में रहता है। तो इफ फ्यूचर में अगर एक टैब कुछ उसमें कुछ प्रॉब्लम भी आती है
तो उसका पूरा इफेक्ट उसी टैब में रहेगा, कोई अलग टैब में नहीं जाएगा। बेसिकली एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। नेक्स्ट इज एंटीवायरस इंस्टॉल कर रखो, जो और जिसको वो डिटेक्ट करता है, मालवेयर डिलीट करता है। ये सारी चीज़ें अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, बहुत सिंपल है, importance भी क्यों है। नेक्स्ट इज यूजर सिक्योरिटी। यूजर सिक्योरिटी फोर्सेस ऑन प्रोटेक्टिंग यूजर अकाउंट्स, डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड मिसयूज। अभी तक तुम यही पढ़ रहे हो यार, इसमें कुछ अलग तो है नहीं। अब यूजर से सिक्योर करो, ऑपरेटिंग सिस्टम को सिक्योर किया, यूजर सिक्योर करो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाओ, एमएफए यूज करो, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, टू स्टेप वेरिफिकेशन, थ्री स्टेप वेरिफिकेशन भी होने लगा है आजकल तो। फिर यूजर को एजुकेट करो कि यार ऐसे ऐसे ईमेल्स या फिशिंग ईमेल्स जो होते हैं, जो दिखते हैं आपको फेसबुक की तरह या इंस्टाग्राम की तरह, पर आप लॉगिन करोगे तो सारे आपके क्रेडेंशियल्स उसके पास चले जाएंगे जिसने उस पेज को डिजाइन किया है, या हैकर के पास चले जाएंगे, तो फिर उस आपको यूज कर सकता है। ये टेलीग्राम पे आजकल बहुत स्कैम्स हो रहे हैं। टेलीग्राम से कोई भी यूजुअल लिंक्स पे क्रिएट करते हैं तो उसके आपके पूरे टेलीग्राम का एक्सेस किसी और के पास चला जाता है। तो बहुत सारे सस्पिशियस लिंक्स को क्लिक ना ही करो। उसके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना सबको बहुत ज़रूरी है। तो एजुकेट करो लोगों को इस बारे में, ताकि ये सब चीज़ें थोड़ी फैमिलियर हो लोगों के, क्योंकि आज के टाइम पे हर इंसान फ़ोन यूज़ कर रहा है। फिर अकाउंट को लॉग आउट करो। लॉग आउट करो मीन्स लॉक अकाउंट्स आफ्टर मल्टीपल फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट। लाइक अगर एक अकाउंट है उसमें अगर बहुत टाइम तक अगर फेल्ड पासवर्ड ट्राई किया गया है, तो उस अकाउंट को कुछ टाइम के लिए, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए लॉक कर दो, सो दैट कि वो एक ब्रूट फोर्स अटैक ना कर ले, क्योंकि ब्रूट फोर्स अटैक में जनरली अगर वीक पासवर्ड होता है तो वो क्रैक कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, प्रोटेक्टिंग एमएफए के थ्रू आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, इंपॉर्टेंस भी क्यों जरूरी है। नेक्स्ट इज प्रोग्राम सिक्योरिटी। प्रोग्राम सिक्योरिटी इंश्योर करता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को फ्री फ्रॉम वल्नरेबिलिटीज एंड कैन नॉट बी एक्सप्लॉइटेड। सिक्योर कोडिंग करो, इस तरह से कोड करो ताकि ये जो भी टेक्निक्स लाइक एसक्यूएल इंजेक्शंस वगैरह होती है, इंजेक्शंस वगैरह होती है, जिसमें क्या होता है कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, एसक्यूएल का कोई कोड, एसक्यूएल का कोई भी कोड, या मान लो सॉफ्टवेयर जिसमें हमारे पास डेटाबेस है, डेटाबेस में मैंने एक एसक्यूएल कोड लिखा कि सिलेक्ट एस्ट्रिक दिस दिस और टेबल को डिलीट कर दो, ये कोड है मेरे पास, छू 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 मंतर इसमें टेबल को डिलीट कर दो। अब मैंने इस कोड को इसमें डाल दिया, जैसे ही ये कोड इसमें जाएगा, द ऑल द डेटाबेस जो हमारे पास है वो सारे के सारे इंस्टेंटेनियसली डिलीट हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एसक्यूएल इंजेक्शंस। और इसमें क्या होता है, आपके पास जो भी डेटा सेट के स्कीमास थे, जो भी डेटा सेट था, क्या पता वो यूजर के किसी हैकर के पास भी पहुंच जाए। तो एसक्यूएल इंजेक्शंस ऐसी चीजें होती है जो बहुत खतरनाक होती है। अगर आप एक रियल टाइम इन्वायरमेंट पे, एक रियल सिस्टम पे काम कर रहे हो और कुछ इस टाइप के सिस्टम पे काम कर रहे हो जो लाइक नेशनल सिक्योरिटी की बात आ गई, इन सब चीज़ों में हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते एसक्यूएल इंजेक्शन, ये सारी टेक्निक्स के बारे में। तो किसी भी प्रोग्राम को बनाने से पहले आपको सिक्योरिटी एनालिसिस होनी चाहिए। सिक्योर करो अपनी कोडिंग को, कोड को रिव्यू करो, मैनुअली और ऑटोमेटिकली रिव्यू योर कोड, अपनी वर्नरेबिलिटीज को चेक करो। बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी होते हैं, सोनार बीक्यू, जो कि जिससे आप चेक कर सकते हो ये सारी चीज़ें। पैचिंग करो, एक्सेस फ्लो आपको पता होगा तो आप इसको गूगल के बारे में, गूगल में सर्च करो इसको, क्रॉस प्लेटफॉर्म जो फ्लॉज होते हैं उसको कैसे आप मिनिमाइज कर सकते हो, फिक्स वल्नरेबिलिटीज इन सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें। फिर रन टाइम प्रोटेक्शन इंप्लीमेंट करो कि अगर आपको सिस्टम आपके रन टाइम में मूव कर रहा है तो उसके रन टाइम में प्रोटेक्शन क्या होगा, कैसे कर सकते हो, वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करो तो आपका प्रोग्राम सिक्योर रहेगा। क्यों ज़रूरी है, इंपॉर्टेंस देख लो आप। नेक्स्ट इज पार्ट 3। पार्ट 3 भी इसमें है, स्पेशल टॉपिक्स। स्पेशल टॉपिक्स में आपका है डेटा प्राइवेसी। तो डेटा प्राइवेसी बचपन से पढ़ते आ रहे, रेफर्स टू प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव डेटा। इज इट सिस्टम इज ऑन? Yes. So basically, unauthorized access से protect करना, individual have a control over the personal information collected and stored. Concerned होना चाहिए like data privacy के लिए concerned होना चाहिए to obtain user permission before collecting data। अगर आपको data collect करना है कहीं से, like data privacy refers to protecting the sensitive data from unauthorized access, तो ensuring individual have a control over the personal data to collected, stored and ensure and used। stored is used मतलब इसका मतलब ये है कि लाइक अगर आप खुद देखो कि अगर एक सिस्टम है, तो अगर एक सिस्टम आपका डेटा को यूज करना चाह रहा है तो आपसे पहले वो कंसल्ट लेगा, कंसल्ट लेना चाहिए, नहीं कि बिना पूछे आपका सिस्टम आपका डेटा यूज करने लगा या कोई एप्लीकेशन डेटा यूज करने लगा। मिनिमाइजेशन, कलेक्ट ओनली डेटा नेसेसरी फॉर इंटेंडेड लाइक पर्पस। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, कोई गेम इंस्टॉल कर रहे हो, तो गेम आपके गूगल अकाउंट का डेटा लेगा, लाइक आपका नाम ले सकता है या आपके पास्ट गेम की हिस्ट्री ले सकता है, आपके फोटोज या कॉल हिस्ट्री नहीं ले सकता। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी कि कौन सा एप्लीकेशन क्या आपका एक्सेस कर रहा है और क्या उसकी नीडेड भी है आपको। तो यू नीड टू बी एजुकेटेड इन दिस, लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स। और ट्रांसपेरेंसी की, आप जो भी चीज आपको ले रहा है, डेटा प्राइवेसी ले रहा है, वो आपको बता दे कि आप वो क्या कौन कौन से डेटा ले रहा है।
नेक्स्ट इज सिक्योरिटी, इंक्रिप्शन हो उसके में डेटा की, आपके पास डेटा प्रोटेक्ट करने का पूरा कंट्रोल हो। टेक्निक्स क्या, इंक्रिप्शन यूज कर सकते हो, ये सारी चीजें, रेगुलेशंस आप यूज कर सकते हो कि अकॉर्डिंग टू दिस अपने रेगुलेशंस आप देख सकते हो कि कौन कौन से एक्ट के हिसाब से आप क्या करना चाहिए आपको। ये सारी चीजें मतलब बेसिकली एक्ट के हिसाब से आप कहाँ तक अपने डेटा को, राइट्स है आपके, क्या क्या राइट्स है वो आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो यहाँ से। सीसीपी ए, लाइक कैलिफोर्निया कस्टमर प्राइवेसी एक्ट, ये सारे एग्जांपल्स और इंपॉर्टेंट देख लेना। इंपॉर्टेंस इन डिजिटल फॉरेंसिक्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइक डिजिटल फॉरेंसिक्स में आपके प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड प्रिजर्विंग डिजिटल एविडेंस, इन्वेस्टिगेट साइबर क्राइम्स वगैरह में यूज हो सकती है। तो फॉरेंसिक करने के लिए आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई डिवाइसेस और डेटा इन्वॉल्व इन इंसिडेंट की, जो भी डेटा या जो भी डिवाइसेस किसी भी इंसिडेंट में, किसी भी मान लो सर्वर कुछ खराब हुआ, उस सर्वर में जो भी डिवाइसेस या जो भी डेटा उसमें इन्वॉल्व थे उसको आइडेंटिफाई करो, फिर उसको प्रिजर्व करो, लाइक क्रिएट अ फॉरेंसिक कॉपी ऑफ डेटा विदाउट ऑल्टरिंग द ओरिजिनल यूजिंग अ राइट ब्लॉकर्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेन है, इस पेन में कोई एक फॉरेंसिक जगह पे ये पेन मिला, तो अगर मुझे इस पे कुछ टेस्टिंग करनी है या मेरे को कोई भी ऐसी चीज मिली जिसमें मुझे टेस्टिंग करनी है, ये नहीं कि मैं इसको सीधा उठा के टेस्टिंग करने लगूँ, नहीं, मैं इसका थोड़ा सा कुछ पार्टिकल लूंगा, उस पर टेस्ट करूंगा, ताकि मेरे पूरी होल सिस्टम पे कुछ डिस्ट्रॉय ना हो, उस पार्टिकल पे या कुछ उसका एक छोटा सा पार्ट हो, उस पर मैं टेस्टिंग करूंगा ताकि वो डिस्ट्रॉय भी हो जाए, तो मेरे पास एक मेजर पार्ट रहे जिसमें दूसरा लेके, मतलब मैं ओरिजिनल को ऑल्टर नहीं करूंगा, एक कॉपी ऑफ डेटा उठाऊंगा उसको ऑल्टर करूंगा, इसको बोलते हैं लाइक प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट उसका एनालिसिस करो कि एग्जामिन करो डेटा, क्या एविडेंस तुम्हें मिला, उसको रिपोर्ट करो। टूल्स यूज कर सकते हो इन केस वायर शार्क, ऑटो पीएसवाई, एग्जांपल देख सकते हो, इंपॉर्टेंट देख सकते हो। नेक्स्ट इज इंटरप्राइज सिक्योरिटी स्पेसिफिकेशन। Enterprise security specification refers to the comprehensive framework or policy that defines security requirements, controls and practice of an organization to protect its assets। बेसिकली एक एंटरप्राइज या एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योरिटी में इम्प्लीमेंट करने के लिए आप क्या चाहिए, आपको पॉलिसीज चाहिए, यानी कि एक पासवर्ड पॉलिसी रहेगी, वो पॉलिसी कुछ रूल्स रहेंगे पासवर्ड को, आपको अगर डालना है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक स्पेसिफिक पासवर्ड होना चाहिए, ताकि अगर आप खुद सोचो आपका पर्सनल लीक हो जाए तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर किसी ऑर्गेनाइजेशन की किसी एम्प्लॉय की लीक हो जाए तो उससे क्या पता उस ऑर्गेनाइजेशन के उस एम्प्लॉय के थ्रू पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा चोरी हो सकता है। तो दिस मे बी यूज एज काफी बड़ा फाइनेंशियल लॉस नहीं हो जाएगा, अगर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसके पूरे डेटा कहीं लीक हो गए तो काफी बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो पॉलिसीज मस्ट बी डिफाइंड कि किसको क्या यूज करना है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड्स, लाइक टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए, इंक्रिप्शन में भी इस टाइप का इंक्रिप्शन आपको यूज करना है, ये नहीं कि कोई सस्ता सा इंक्रिप्शन उठा के लगा दिया, क्या पता उसी में वायरस हो। एक प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ इंक्रिप्शन होना चाहिए। प्रोसीजर, प्रोसीजर मीन्स स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि इंसिडेंट, अगर ऐसा इंसिडेंट आया, अगर आपका सिस्टम बंद हो गया अपने आप या सिस्टम में कुछ भी माल फंक्शन हुआ या कोई भी मालवेयर आया, तो किस टाइप में आपको उसका रिस्पॉन्स करना है, प्रोसीजर्स डिफाइंड होने चाहिए। कंट्रोल्स, इंप्लीमेंट फायरवॉल्स, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, एक्सेस कंट्रोल, ये सारी चीजें आपके सिस्टम में इंस्टॉल होनी चाहिए अगर आप एक एंटरप्राइज में काम कर रहे हो तो। इसलिए जो एंटरप्राइज के सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें ये सारी चीजें प्री इंस्टॉल्ड रहती है। अगर आपको पीसी या सिस्टम मिलता है जिसके किसी भी कंपनी का, तो ये सारी चीजें आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलेगी उसमें। बस दिस इज द थिंग। तो हमने इसी के साथ साथ यूनिट 4 पूरा कवर कर लिया। यूनिट 4 अभी तक का सबसे बड़ा चैप्टर आप बोल सकते हो और सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर था। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको जो भी सजेशंस देने हैं या कोई भी पार्ट आपको पसंद आया या नहीं आया, यू कैन जस्ट कमेंट इट डाउन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे।